بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع پر پابندی رہے گی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ لاؤڈ سپیکر صرف آذان اور جمعے کے خطبے کے لیے استعمال ہوں گی۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان نے پابندی میں توسیع کی سفارش کر دی۔ محکمہ داخلہ نے 24 اکتوبر تک کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں ہر قسم کے احتجاج، جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں، اجتماع اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد ہوگی۔ دفعہ 144 کے تحت 4 یا زائد افراد کے عوامی مقامات پر جمع ہونے پر مکمل پابندی ہوگی۔ صوبہ بھر میں ہر قسم کے اسلحہ کی نمائش پر مکمل پابندی عائد کی گئی ہے۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں 7 روزہ توسیع کر دی گئی۔ دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہے۔ پنجاب بھر میں اشتعال انگیز، نفرت آمیز یا فرقہ وارانہ مواد کی اشاعت و تقسیم پر مکمل پابندی ہے۔ کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کے 38ویں اجلاس میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کی سفارش کی گئی۔ پابندی کا اطلاق شادی کی تقریبات، جنازہ اور تدفین پر نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ نے 24 اکتوبر تک دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محاصل بڑھانے کے لیے نیا ٹیکس پلان تیار، مختلف سروس سیکٹر سے 80 ارب روپے اضافی محصولات کا ہدف مقرر۔ پنجاب حکومت کے مطابق بار ٹیکس نیٹ کو جدید ڈیجیٹل نظام کے ذریعے وسعت دی جا رہی ہے۔ محصولات بڑھانے کے لیے نیا ٹیکس پلان تیار کر لیا گیا، مختلف سروس سیکٹر سے 80 ارب روپے کا ہدف مقرر۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے پلان حکومت پنجاب کو پیش کر دیا۔ انٹرنیٹ بینکنگ، انشورنس اور ہوٹل سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں سختی سے لایا جائے گا۔ فوڈ ڈیلیوری ایپس اور آن لائن ریسٹورنٹ پر بھی ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دستاویزات کے مطابق انشورنس سیکٹر اور ٹیلی کام کمپنیوں سے 5 ارب روپے کے محصولات حاصل کیے جائیں گے۔ بینکنگ سروسز سے بھی 5 ارب روپے کے محاصل کا ہدف ہوگا۔ اسٹاک بروکریج، کمیشن، شادی ہاؤس اور پراپرٹی بلڈرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کی ہدایات کر دی گئی۔ ٹیکس چوری کے خلاف کارروائی تیز کرنے کے لیے EMIS سسٹم پر عمل درآمد بھی شروع کر دیا گیا۔ نیا آڈٹ پلان بھی تیار۔ ماہرین کے مطابق اگر یہ پلان مؤثر طور پر نافذ ہو گیا تو پنجاب کے محصولات میں نمایاں اضافہ ممکن ہوگا۔ ٹیکس نیٹ بڑھنے سے جہاں صوبائی آمدن میں اضافہ ہوگا، وہیں کاروباری طبقے کے لیے بھی ٹیکس شفافیت کی نئی راہیں کھلیں گی۔ علیرہ میں City 42۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ جو ذہنی تنظیم نواز شریف جواد کے نام سے ملک صاحب اس کے ہوئے وہاں ہیں، جنہوں نے تنظیم شروع کی آج سے کچھ سال پہلے، اور آج ماشاءاللہ آپ کی تعداد میں میرے بھائی اور بہنیں جو ہیں تو میاں محمد نواز شریف کے نام سے جو ہے تنظیم میں شامل ہو رہے ہیں۔ ہم سب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن ہیں ملک میں، ہم سب میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والے ہیں، ہم سب میاں محمد نواز شریف کے لفظ ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کو دراز کی عمر، صحت، زندگی میں خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، کیونکہ یہ سب بہاریں، یہ سب خوشیاں، یہ سب جو چیزیں ہیں، اقتدار ہے، یہ سب میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر الحمدللہ ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف ہے۔ آج میاں محمد نواز شریف کے ووٹوں کی وجہ سے، میاں محمد نواز شریف کے چاہنے والوں کے ووٹوں کی وجہ سے آج وفاق میں پنجاب میں ہماری حکومت ہے۔ وفاق میں جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہمارے قائد میاں نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ بطور وزیر اعظم پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح پنجاب میں میاں محمد نواز شریف کی بہادر اور دلیر بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان تقریب سے خطاب کریں، ابھی آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا۔
आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें ई चालान डिफाल्टर गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर। अब 2510 ई चालान नादहिंदगान को पकड़ा जाएगा। नादहिंदा गाड़ियों को जुर्माना अदा होने तक पुलिस स्टेशन बंद रखा जाएगा। नादहिंदा गाड़ी ब्लैक लिस्ट करने के लिए चालान की तादाद कम कर दी गई। शहरी ई चालान जमा करवा दें वरना ट्रैफिक पुलिस धर लेगी। ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान नादहिंदा गाड़ी ब्लैक लिस्ट करने के लिए चालान की तादाद कम कर दी। अब 2510 ई चालान नादहिंदगान को पकड़ा जाएगा। दूसरे मरहले में अब 25 ई चालान नादहिंदा गाड़ी और मोटरसाइकिल ब्लैक लिस्ट कर दी जाएगी। तीसरे मरहले में 10 ई चालान नादहिंदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पकड़ी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ई चालान नादहिंदा गाड़ियों को जुर्माना अदा होने तक पुलिस स्टेशन बंद रखा जाएगा। सिटी लाहौर के मुताबिक ई चालान डिफॉल्टर से जुर्माना वसूली के लिए सेफ सिटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने तवानाई बचत और मौसर इस्तेमाल के मंसूबे पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम की तरमीमशुदा अखराजात की मंजूरी दे दी। मंसूबे की लागत 3 अरब 61 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 अरब 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। फंड्स इंटरसेक्टोरल रीअप्रोप्रिएशन के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर फ्राहम किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तवानाई बचत और मौसर इस्तेमाल के मंसूबे पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम की तरमीमशुदा अखराजात की मंजूरी दे दी। मंसूबे की लागत 3 अरब 61 करोड़ रुपए से बढ़कर 8 अरब 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद सूबाई काबीना ने 5 अरब 8 करोड़ 67 लाख रुपए की इजाफी रकम के अजरा की भी मंजूरी दे दी, जो रवां माली साल की पहली समाही में जारी की जाएगी। फंड्स इंटरसेक्टोरल रीअप्रोप्रिएशन के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर फ्राहम किए जाएंगे। महकमा खजाना और मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड के मुताबिक इस रकम के मंसूबे के मौसर निफाज और नताज के हसूल में मदद मिलेगी। हुकाम का कहना है कि मंसूबे की मुद्दत 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। एक्सपो सेंटर में जारी पाक चाइना लव फेस्टिवल 2025 नामवर ब्रांड मरी ब्रूअरी के स्टॉल पर मुख्तलिफ फ्लेवर्स के जूसेस और फूड प्रोडक्ट सार्फिन की तवज्जो का मरकज बने। पाक चाइना लव फेस्टिवल में मरी ब्रूअरी ने अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया, जिसमें माल्ट ब्रांड के तमाम फ्लेवर्स, बिग एप्पल टॉप ब्रांड के तमाम जूस, एनर्जी ड्रिंक्स, मिनरल वाटर, केचप, जैम और सॉसेज समेत दीगर प्रोडक्ट सारिफीन की तवज्जो का बरकस बनी। मार्केटिंग मैनेजर अदराक अहमद का कहना था कि मरी ब्रूअरी 1860 से आवाम को मयारी प्रोडक्ट्स मुहैया कर रही हैं। मकसद ही यही था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और ये एक पॉजिटिव साइन भी होता है पाकिस्तान के लिए कि अगर फॉरेनर्स आके आपके मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे चाइनीज के काफी मैं देख रहा हूँ काफी सारे। स्टॉल पर आए सारिफीन कहते हैं कि मरी ब्रूअरी अपने मयार और एनर्जी ड्रिंक्स के बाइस बहुत मकबूल है। इसके जूसेस का फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ब्रांडेड चीजें भी हैं और लाइक सफाई भी इनकी होती है और सारा कुछ ओवरऑल का ब्रांड बहुत अच्छा है। मरी ब्रूअरी कंपनी का बड़ा जो जूस भी है, उनके फूड भी हैं और नंबर 1 क्वालिटी के हैं। मैं तो बड़ी देर से इस्तेमाल कर रहा हूँ, बाकी को भी सजेशन दूंगा। मरी ब्रूअरी की इंतजामिया का कहना था कि एक्सपो के पहले रोज सारिफीन का फुटफॉल देखकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि ऐसी एक्सपोज मुस्तकबिल में भी होती रहेंगी। कैमरामैन अदनान अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। मनामा अस्पताल कैंसर के इलाजगाह से तहसील अस्पताल का दर्जा मिलने पर लावारिस। 3 हफ्ते गुजर गए, डॉक्टर्स मिले न तिबी अमला, अस्पताल गैर फ़आल हो गया। मनामा अस्पताल कैंसर के इलाजगाह से तहसील अस्पताल के दर्जे पर तनज़ली के बाद लावारिस हो गया। मनामा अस्पताल का 3 हफ्ते कबल कैंसर के इलाजगाह का दर्जा ख़त्म किया गया। मनामा अस्पताल को दोबारा तहसील अस्पताल बना दिया गया। 3 हफ्ते गुजर गए, महकमा सेहत मनामा तहसील अस्पताल को फ़आल नहीं कर सका। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के मनामा अस्पताल में डॉक्टर और अमला पूरा करने के अहकामात भी अफसर शाही ने हवा में उड़ा दिए। मनामा अस्पताल को THQ का दर्जा मिलने पर सिर्फ 3 डॉक्टर मौजूद हैं। मनामा कैंसर अस्पताल का दर्जा ख़त्म करके महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने डॉक्टर्स और अमला भी फारिग कर दिया था। लाहौर के इलाके नसीराबाद और गोपाल नगर का पार्क खस्ता हाली का शिकार। पार्क में झूले टूट चुके, घास गायब है, रोशनी का कोई मुनासिब इंतजाम मौजूद नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क का मंजर किसी वीरान मैदान से कम नहीं। बारिश के बाद जगह जगह पानी जमा हो जाता है, जिससे बदबू और मच्छरों में इजाफा होता है। इलाके के बच्चे टूटे फूटे झूलों पर खेलने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतल्लिका इंतजामिया से मुतालबा किया कि पार्क की फौरी मुरम्मत करके सहूलियात बहाल की जाएं। चबुर्जी रिक्शा मार्केट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फ़आल, मकीनों को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। चबुर्जी रिक्शा मार्केट का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 माह से बंद पड़ा है। मकीनों को पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना है। मकीन कहते हैं पानी के हसूल के लिए दूर दराज इलाकों का रुख करना पड़ता है। मुतल्लिका इंतजामिया मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली पर कान नहीं धरती। मकीनों ने आला हुकाम से फिल्ट्रेशन प्लांट की बहाली का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास हुआ। 55 निजी हाउसिंग स्कीमों के गंदे पानी के मौसर ट्रीटमेंट बारे तजावीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में डीजी वासा पंजाब, डीजी PHA, डीजी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, चीफ इंजीनियर LDA और दीगर अफसरान शरीक हुए। इब्तदाई मरहले में लाहौर की 55 निजी हाउसिंग स्कीमों से खारिज होने वाले गंदे पानी के मौसर ट्रीटमेंट बारे तजावीज़ का जायजा लिया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासिन ने LDA, वासा, PHA और महकमा माहौलियात को मुश्तरका सिफारशात पेश करने की हिदायत भी जारी की है। कहा, हाउसिंग स्कीमों के सीवरेज सिस्टम्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स, डिस्पोजल रूट्स का जायजा लिया जाए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने कमेटी तश्कील देते हुए 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। बिलाल यासिन का कहना था, मुजवज़ा सिफारशात में प्राइमरी और सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के क़याम की तजावीज़ शामिल की जाएँ। हडियारा ड्रेन के अतराफ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए PHA लाहौर 13,000 पौधे लगाएगा। वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का PIC का दौरा इलाज मुआवजे की फ़राहमी का जायजा लिया। मरीजों को दस्तियाब तिबी सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के PIC दौरे पर चेयरमैन बोर्ड डॉक्टर फरहत आलमगीर मौजूद थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन, MS PIC डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। मरीजों को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात पर इजहार इत्मीनान किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, आवाम को इलाज मुआवजे की बेहतरीन और बिला मुआवजा सहूलियात की फ्राहमी हमारा मिशन है। PIC बिला शोबा न सिर्फ पंजाब के बल्कि दूसरे सूबों से आए मरीजों को भी मायारी इलाज फ्राहम कर रहा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद की रिहाइश का आमद। मियाँ आमिर महमूद के हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद की रिहाइश का पहुँचे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मियाँ आमिर महमूद के हमशीरा के इंतकाल पर सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया, फातिहा खानी की। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद, सोगवार ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान की वाइस चेयरमैन LDA मियाँ मरगूब अहमद की रिहाइश का आमद। मियाँ मरगूब से उनकी अहलिया के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। क्रीम पार्क में राना सनाउल्लाह ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मगफरत के लिए फातिहा खानी की। इस मौके पर रुकनी असम्बली राना मोहम्मद अरशद, मियाँ सोहेब गानी, चौधरी मुनीर, शेख साहिद, मियाँ फारूक, नदीम भट्ट और फवाद महमूद समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास हुआ। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने सदारत की। महकमे आला हुकाम, अरकान असेंबली और बोर्ड मेंबरान ने शिरकत की। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़, इदारा जाती मजबूती समेत अहम अमूर ज़ेर गौर आए। इजलास में वज़ीर आला मरीम नवाज के VN के तहत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियारी के इक़दाम का जायजा लिया गया। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने कहा, विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी खवातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ की फ्राहमी और बाइख्तियारी के लिए मौसर और देरपा इक़दाम कर रही है। हम एक ऐसे मुआशरे की तामीर कर रहे हैं जहां औरत को कमज़ोर नहीं बल्कि क़ुव्वत समझा जाए। विमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स और हेल्पलाइन को मज़ीद फ़आल बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर बात करेंगे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर का दौरा। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज से मुलाकात की। सूबाई लॉ अफसरान को जदीद कानूनी सहूलियात की फ्राहमी और मुकदमात के मौसर इंतजाम से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की एडवोकेट पंजाब जनरल ऑफिस आमद हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज से मुलाकात की। इस मौका पर सूबाई लॉ अफसरान को जदीद कानूनी सहूलियात की फराहमी और मुकदमात के मौसर निजाम से मुतल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस के लॉ अफसरान के लिए पाकिस्तान कोड और कैम तक बिला मुआवजा रसाई की पेशकश की। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने सिटी 42 से इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान कोड के नाम से फैसिलिटी है और उनका क्लेम ये है कि हम 48 आवर्स में हर आने वाली तरमीम जो है उसको सिस्टम पे अपडेट कर देते हैं और वो ऐप आपको फ़ोन पे अवेलेबल है, जिससे जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वकला हजरात हैं, वो जस्ट एक क्लिक के साथ किसी भी कानून में होने वाली तरमीम या पाकिस्तान के किसी भी वफाकी कानून तक रसाई उनके लिए क्लिक की बात है। सेकंड में आप वो फौरी लॉ निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कैंप सहूलत के जरिए लॉ अफसरान और उनके जेर समात केसेस की रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी का मौसर अंदाज में जायजा लिया जा सकेगा। आला अदालतों में सरकारी मुकदमात की पेशरफ्त से बर वक्त आगाही हासिल होगी।
मुलाकात में एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब, ख्वाजा मोहसिन अब्बास, अल हाफिज ख्वाजा लतीफ अहमद शरीक हुए। समिया एजाज, खालिदा परवीन, वसीम मुमताज मलिक, राव औरंगजेब समेत मुतादिद लॉ अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद नवाब चीमा, इमरान खान, सत्तार साहिल, इमरान अब्बास शाही, कमरुज़्ज़मान कुरैशी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। सानिहा कारसाज की 18वीं बरसी पीपल्स पार्टी लाहौर के ज़ेर तमाम दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। शोहदाए कारसाज की याद में शम्में रोशन की गई। पीपल्स सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में सानिहा कारसाज की 18वीं बरसी पर दुआया तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहतमाम राना जमील मंज और चौधरी रियाज ने किया। मियाँ अयूब, हाजी अजीज़ुर रहमान चंद, अमजद जट, नदीम मलिक, आरिफ खान, डॉक्टर खालिद जावेद जान शरीक हुए। नरगिस खान, शाहिदा जबी, वाजिद अली शाह, शमी मलिक, राना आशिर नसार, फयाज भट्टी, जिशान शामी, बशारत सदीकी और शुजात ने शिरकत की। परवीन शेख, मीर शकील, इमरान खोकर, एडवोकेट अदनान खोकर, एडवोकेट ताहिर गालिब, आयशा वक्कार, नादिया शाह तकरीब का हिस्सा बनी। डॉक्टर वसीम सियाल, डॉक्टर रफीक समेत तबस्सुम, शहनाज कमल, आकिब सरवर, कामरान डार समेत कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि शोहदाए कारसाज में 90% पीपल्स यूथ के कारकुन थे। अब यहाँ पर बात करेंगे इदारा मिनहाजुल हुसैन। लाहौर के 35वें योम तासीस पर पुरवकार सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत सरपरस्त आला अलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर ने की। तकरीब में डॉक्टर सैयद हसनात, अलामा मोहम्मद सब्तैन अकबर, राय जफर अली, अलामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर और कासिम अली कासमी ने शिरकत की। अलामा डॉक्टर मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि इदारा मिनहाजुल हुसैन सिर्फ तालीम के फ़रोग़ के लिए नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगाम को अमली ज़िंदगी में नाफिज करने के मकसद से कायम किया गया है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की जिंदगियां इंसानियत के लिए मशले राह हैं। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की दावत कबूल कर ली है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे श्रीलंका के दरमियान T20 3 मुल्की सीरीज नवंबर में होगी। 3 मुल्की सीरीज 17 से 29 नवंबर तक रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की जो ट्राई नेशन सीरीज थी वो नवंबर में शेड्यूल थी, जिसमें पहले अफगानिस्तान ने आना था, लेकिन अफगानिस्तान ने हालिया कशीदगी की वजह से पाकिस्तान आने से इनकार किया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। उन्होंने पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली है और नवंबर में जो होने वाली ट्राई नेशन सीरीज है उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीमें जो है वो खेलेंगी। इसमें पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का जो इफ्तिताही मैच है वो 17 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे का मैच 19 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा, जबकि लाहौर कदाफी स्टेडियम जो है वो 5 मैचेस की मेजबानी करेगा। जी ठीक है वसीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। टाउनशिप M7 में सानिहा कारसाज के शोहदा की याद में दुआया तकरीब रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल मीर ने सदारत की। दुआया तकरीब में खुरम फारूक, एडवोकेट शहबाज दुरानी, हसनैन हाशमी, एजाज शाह, इलियास शाह और दीगर शरीक हुए। तकरीब सानिहा कारसाज के शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। फैसल मीर का कहना था, ये तकरीब हमें सानिहा कारसाज के शोहदा की कुर्बानियों की कदर करने और उन्हें याद रखने की तरगीब देती है। इस मौके पर सानिहा कारसाज के शोहदा की याद में शम्में रोशन की गई। प्रेस क्लब में बुजुर्ग सहाफ़ी और शायर सरफराज सैयद की 89वीं सालगिरह की तकरीब। सहाफ़ियों, शुरा, अदीबों और फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रेस क्लब में होने वाली तकरीब में सरफराज सैयद का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब में अदाकार राशिद महमूद, शायर बाबा नजमी, सेमाब फरबुखारी समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने सरफराज सैयद की सहाफ़ती और अदबी खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर सरफराज सैयद ने सालगिरह का केक काटा, हाज़रीन से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसार कदीमा के आलमी दिन पर लाहौर अजायब घर में तकरीब मौजू आर्कियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान रखा गया। तकरीब में माहिरीन आसार कदीमा, मुहक्किकीन और तलबा ने शिरकत की। तकरीब में एडिशनल सेक्रेटरी सियाहत आसार कदीमा और अजायब घर सद्दफ जफर, डायरेक्टर आसार कदीमा इकबाल खान मंद शरीक हुए। प्रोफेसर ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन लाहौर कॉलेज डॉक्टर फरहद सैफडार, चेयरपर्सन डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री FC कॉलेज डॉक्टर फरजन मसीह और आसिम रिजवान ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तान की सरजमीन सदियों पुरानी तहजीबों का गहवारा है। नौजवान नस्ल को आसार कदीमा से मुतल्लिक तहकीक और तहफ़्फ़ुज़ के कामों में आगे आना चाहिए। तकरीब में लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान शाकिर नसीर ने ऑनलाइन शिरकत की।
दी नॉलेज स्कूल का एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब, नुमाया कारकर्दगी के हामिल तलबा को कैश प्राइज, मेडल्स और असनाद से नवाजा गया। दी नॉलेज स्कूल के तहत एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड्स 2025 की तकरीब का इनेकाद UMT में किया गया। तकरीब की सदारत प्रोवोस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने की। तकरीब में दी नॉलेज स्कूल्स के 9वीं और 10वीं जमात के तलबा ने सुबह भर से शिरकत की। इस मौके पर वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद में मौजूद थी। प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी ने दौरान खता पोजीशन होल्डर्स तलबा की मेहनत, लगन और कारकर्दगी को सराहा। अब यहाँ पर बात करें पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में 4 रोज़ा न्यूरो कॉन्फ्रेंस का आगाज़। पहले रोज़ जदीद नर्सिंग सेमिनार मुनाकिद हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर ने सदारत की। DG नर्सिंग पंजाब ताहिरा परवीन समेत बड़ी तादाद में नर्सिस शरीक हुई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में 4 रोज़ा न्यूरो कॉन्फ्रेंस के पहले रोज जदीद नर्सिंग सेमिनार मुनक्कद हुआ। नर्सिंग के जदीद तरीक़ाकार के हवाले से आगाही दी गई। फरजाना इकबाल, मेमूना सत्तार, नाजिया इलियास, मोहम्मद अफजल समेत देगर शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आसिफ बशीर ने कहा 4 रोज़ा न्यूरो साइंसेज के हवाले से कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जिसका मकसद न्यूरो के बहुत से शोबों में आगाही देना है। जितनी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, स्टार्टिंग विद नर्सिंग, बिकॉज नर्सेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि उनकी एजुकेशन, उसके लिए हमने इंटरनेशनल गेस्ट को भी बुलाया हुआ है। और नर्सिंग के साथ आज पैथोलॉजी की, न्यूरोसर्जरी की, ट्रामा की वर्कशॉप हो रही है, एंड रेडियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी की तो ऑफ कोर्स हो ही रही है, रिहैबिलिटेशन, एनेस्थीसिया एंड मेडिकल एजुकेशन पे मेडिकल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं, एज वेल एज फॉरेन गेस्ट जो हमारे आ रहे हैं साथ साथ। DG नर्सिंग पंजाब ताहिरा परवीन और सीनियर इंस्ट्रक्टर आसिया ने कॉन्फ्रेंस की काविशों को सराहा। हर वो नर्स हु इज़ वर्किंग इन न्यूरो साइंसेज मस्ट हैव स्पेशलिटी। ठीक है, तो इस बार हमने जितने NOCs भी प्रोसेस किए हैं हमने न्यूरो साइंसेज में ही किए हैं, तो दैट वुड हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट केयर। कंटिन्यू एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं, ये जो वीकली एक वर्कशॉप कराते हैं, आपको पता है जब तक आप किसी चीज़ के रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं करते हैं तब तक जो है वो आपकी उतनी एक्सीलेंसी नहीं आती है। न्यूरो साइंसेज की कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना ही।